Hi everyone, welcome to Law Prep Tutorial. This is your mentor, host and guide, Harshvardhan Tripathi. Today I am going to take you to a very interesting session. I'm not going to take much of your time. As you can see, there are certain secrets that I'm going to tell you that nobody is going to tell you about. वैसे तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट इस पे लोग काम नहीं करते या इसके बारे में सोचते नहीं है. अब हम आपको क्लैट 2023 के पेपर के बारे में बताएं. दोस्तों, क्लैट का जो पेपर है वो सांप की चाल चलता है. हर साल क्लैट कंसोर्शियम किसी ना किसी तरीके के ऐसे चेंजेस करता है जो स्टूडेंट्स और फैकल्टीज दोनों के लिए एक शॉकर होते हैं. क्लैट 2025 का क्या ट्रेंड होगा, क्या नहीं होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्लैट की हिस्ट्री के सबसे ट्रिकियस्ट पेपर को, द मोस्ट ट्रिकियस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ क्लैट, that was CLAT 2023 and we are going to assess the critical reasoning section. दुखती नब्ज है ना ये आपकी CR सेक्शन. तो CR सेक्शन के पैसेजेस कहाँ से लिए गए और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू में अपने को जो चीज़ें लेके चलनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर पहले पढ़ना चाहिए, तो उसमें क्या दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. नाउ द मोमेंट पीपल गॉट क्लैट 2023 का पेपर देखते से ही एक शॉक लगा था स्टूडेंट्स को एंड दे वर कंफ्यूज्ड फॉर लाइक प्रीटी मच 15 to 20 मिनट्स इन द स्टार्ट कि यार क्या होने वाला है इस पेपर में, कैसा होने वाला है ये पेपर. तो सबसे पहली चीज़ आप ये याद रखिएगा कि क्लैट का जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, राइट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एवरी वन एंड द सिलेक्शन गेट्स ईजियर. सुन के बड़ी अटपटी सी बात लगती है, बड़ी अनकन्वेंशनल बात लगती है, but please understand that most of the aspirants in the start only, they tend to lose focus, right? So they found critical reasoning section to be very lengthy and current affairs to be very, very tricky because a lot of facts were asked and a lot of static was also included in CLAT 2023, right? But there were still ways where students could have cleared this particular examination. And with that thought, let us first try to assess the first source in 2023. As I have been telling you guys that, see, always focus on the trends in the newspaper, and newspaper is the best source to predict what could be there in the upcoming examination. So the very first topic that people saw, जैसे ही मिला अपने को यार ये तो रूपी का डेप्रिसिएशन से कोई टॉपिक आया है, and that was due to Russia-Ukraine war. So war happened in 2022. That started in 2022, but there was a complete disruption in the entire global economy. And with that, the import as well as the export of countries, emerging economies, developed economies, was significantly, you can say, affected. And that is why there was a variation in evaluation of currencies. Some currencies were getting evaluated, some currencies were getting devaluated, and it had a strict, you can say, direct impact on evaluation of rupee against dollars. So this is the source. As you can see, it is a Telegraph Online. Now nobody recommends you to read Telegraph Online. So do we have to read Telegraph? Absolutely not. You don't have to change the sources, but the moment the sources get unconventional and people do not know about it, so they tend to get worried. यार इकोनॉमी पूछ लिया, यार ये कहाँ टेलीग्राफ से पूछ रहा है, राइट? तो ये चीज़ अपने को कभी परेशान नहीं करनी चाहिए, बिकॉज द डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी एंड चैलेंजेस बिफोर आरबीआई. अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या आप द हिंदू पढ़ रहे हैं, these newspapers have got it covered already. So you please understand, जब भी आप अब एडिटोरियल पढ़िए, देखिए ये कब का है, 27 सितंबर 2022 का है, ठीक है. 23 का पेपर कब हुआ? दिसंबर में हुआ, ठीक है, दिसंबर में हुआ. एंड दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन आर्टिकल केम इन 27 सितंबर 2022. तो आपको एक चीज़ मैं ऐसी बात बता रहा हूँ अब कि देखिए 6 महीने का जो आपका न्यूज़पेपर होता है ना, 6 मंथ्स का न्यूज़पेपर, उसको एकदम लाइन बाय लाइन, आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़िएगा, क्योंकि 6 महीने के ही आर्टिकल से ये आपका जो पेपर है, पैसेजेस हैं, वो सोर्स आउट होते हैं. मैं सिर्फ एक पैसेज के दम पे तो ये बात बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको दूसरा सोर्स भी दिखाता हूँ. देखिए अगला आर्टिकल हमारा 27 अक्टूबर 2022 का है, और इसमें भी आप वही सोर्स देखेंगे. यू विल फाइंड इट इट टू बी द सेम न्यूज़पेपर दैट वाज देयर. 1 महीने बाद का आर्टिकल उन्होंने पूछा, बट
look at the trend. The trend is basically talking about media freedom, and media freedom is considered to be very, very vital topic for a law student in their law school, even beyond, because media does not include only digital media. It includes print media, it includes television, and it also includes your social media, right? So here you will find, as the title says, that the print media editorials are the most trusted source of information, which means it is talking about how print media has maintained the neutrality and are not biased and not focused on selling the news. So this is again a very, very important trend, the media freedoms and everything. And this was an important trend. As you can see, एग्जाम दिसंबर में होता है, 2 महीने पहले का, 2 months बिफोर का एडिटोरियल आपसे उठा के पूछ दे रहे हैं सीधे आर्टिकल। तो वही मैं वापस से बोलूंगा कि आप चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, चाहे आप द हिंदू पढ़ते हो, राइट, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें भी ये आर्टिकल, क्योंकि एडिटोरियल है, एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन सर्टेन इश्यूज, एंड इंडिया के प्रेस फ्रीडम के ऊपर काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनली बोली जा रही थी उस साल, तो सब न्यूज़पेपर ने कवर किया था। अगेन यू कैन सी अक्टूबर का है टॉपिक। नेक्स्ट पैसेज आप देखिए, एनर्जी कॉनंड्रम, द कंफ्यूजन अराउंड एनर्जी क्राइसिस। जैसा कि आपको पता है कि कॉप जो है 26, कॉप 27, कॉप 21, each of this conference of party is related to your UNFCCC की meeting, and UNFCCC की meeting में the bone of contention had always been that developing countries versus developed countries. डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना रहता है कि भाई देखो, हमें ना ट्रांजिशन करने के लिए, क्या करने के लिए, ग्रीन ट्रांजिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी, वी नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो ये पैसा कौन देगा, कितना देगा और किसको देगा, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले जो कॉन्फ्रेंस हुए हैं हैव बीन देयर इन द न्यूज, इन द ट्रेंड। अब आप देख सकते हैं दैट दिस पैसेज वाज बेसिकली ऑन sourced from down to earth. Again you can see August का topic है how the overuse of fossil fuels and release of carbon dioxide will impact the lives of the people after COVID. It's a very, very generic topic. Almost every month you will find certain passages on the energy demand, increasing energy demand, some report, global energy outlook report by International Energy Agency, and likewise. So please keep a tab, because if you have a general understanding, see, again I'm telling you the trick part, okay, if you have the general understanding of the theme discussed in the passage, you know, it helps where it helps you in reducing your time, which means आपका जो समय लगने वाला है उस पैसेज को पढ़ के डिकोड करने के लिए, आप उसमें ऑलरेडी काफ़ी आगे रहते हो, बिकॉज आपको जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो ऑलरेडी होता है। तो भाई जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, उसको अप्रोच करो, याद रखो कि वो सिर्फ जीके के लिए नहीं करना है अपने को। न्यूज़पेपर कहते हैं ना, एक रूल बुक है, एक गाइड है, जो आपको आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, सीआर में, दैट इज लॉजिकल सेक्शन में, आपके जीके के सेक्शन में और लीगल सेक्शन में, सभी में आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करने वाला है। देखिए, आपका जो इंग्लिश एप्टीट्यूड आता है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन आता है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें नॉवल से सोर्स्ड आउट रहती हैं। तो इट माइट हेल्प, न्यूज़पेपर्स माइट हेल्प, माइट नॉट हेल्प, बट न्यूज़पेपर्स गिव यू गुड सेंस ऑफ वोकैब, राइट? इट हेल्प्स यू इन डिकोडिंग दोज पैसेजेस, but it is a very, very, you can say, direct source for GKs, for your critical reasoning, as well as for your legal section. So if you keep a tab on the trends, okay, which are there in the newspaper, you will find some reflection to be there in the CLAT paper. But there are certain topics like this which are completely out of the box, but then people say, sir, हमसे ना थोड़ा सा फिलोसॉफी पूछ लेते हैं, सामाजिक मुद्दों पे हमसे, सोसाइटल इश्यूज पे बात कर लेते हैं। अब देखो यार, क्लैट को देने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पहली बात तो यार 11वीं 12वीं में इतना सामाजिक मुद्दों पे ना डिस्कशन किए रहते हैं, ना इतना पढ़े रहते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होती हैं, और ये आपको थोड़ा सा एग्जामिनेशन में स्लो डाउन करती है। ऐसा नहीं है कि पैसेज या टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको, बट देखिए ये वर्ड है जैसे स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट द मिडिल एजेड वुमेन्स करियर्स। Now, when you say middle-aged women, definitely you're talking about married women. Now, when you are talking about married women, you're talking about maternal health care.
you're talking about jaccha bachcha, you're talking about children, okay, you're talking about infant mortality rate, you are talking about TFR, total fertility rate, you are talking about maternal mortality rate, you're talking about integrated child development scheme, you're talking about samagra shiksha mission, you're talking about poshan abhiyan, you're talking about poshan abhiyan, you're talking about poshan abhiyan, you're talking about periodic labor force survey, PLFS survey, which keeps a thread on the economy, right, on the economy and the labor force participation and the impact of the labor force on the economy. And even if and definitely it can't go without saying that SDG 5, that is gender equality, to be maintained, is all of this is included in this single topic, that is how the women careers are getting affected. Now in COVID-19 there was this trend, everybody was discussing this particular thing, that यार हमारे यहाँ पे जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उन्होंने ओवरवर्क किया है कोविड के टाइम पे, और अनपेड वर्क है, यानी कि डोमेस्टिक वर्क के लिए हमारे गृहिणियों को, हमारी होम मेकर्स को पैसा नहीं मिलता है कोई, फिर भी वो काम करती हैं। और कुछ ऐसे रोल्स हैं प्री डिफाइंड इंडस्ट्री में जहां पे कहते हैं कि महिला ये काम नहीं कर पाएगी। तो उस तरह के स्टीरियोटाइप्स ने किस तरीके से हमारी मिडिल एजेड वुमेन को इफेक्ट किया, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत भी एक परसेप्ट रखते हो, अपना अपना व्यू रखते हो, तो आपका टाइम बचता है और आप क्विकली समझ जाते हो, यू कैच द पल्स ऑफ द पैसेज एंड यूर एबल टू एलिमिनेट द options, right? So please understand what I'm trying to tell you, that you don't have to read multiple sources, right? You have to read the trends from multiple sources if you want, बट अगर आप एक ही पेपर को ना बहुत रिलीजियसली फॉलो करो और चीज़ों को समझते हुए चलो, नब्स पकड़ते हुए चलो, तो इट गेट्स वेरी वेरी ईजियर, बिकॉज यू आर रेसिंग नॉट अगेंस्ट नॉलेज, यू आर रेसिंग ओनली अगेंस्ट द टाइम. And again, if in keeping that trend in mind, see, I am telling you that novel reading helps a lot. मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपने ये टारगेट बनाया कि यार मेरे को ना 6 मंथ्स में क्लैट का प्रिपरेशन करने का है और मैं हर महीने एक नॉवल कंप्लीट करूंगा, तो एटलीस्ट मैं 6 नॉवेल्स कंप्लीट करूं 300 पन्ने की, तो आप ऑलमोस्ट 1800 पेजेस को जब रीड करोगे ना दोस्त, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है सिग्निफिकेंटली राइज करता है. क्योंकि ऐसी नॉवेल्स विच इज फ्रॉम अ नॉवल ह्यूमन काइंड, अ होपफुल हिस्ट्री बाय रेडगर ब्रेगमैन, एंड दिस लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल इश्यूज वर देयर, जिसको हम कहते हैं कि यार ज्ञान वान की बातें हैं अपनी, इतनी समझ में नहीं आती, बट अपने को यही करना है यार. अपने को ना रीडिंग बहुत तेजी से करने के लिए 6 महीने में क्या करना चाहिए, किताबें पढ़ लेनी चाहिए. तो क्या सीखा हमने ये देखा कि जो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं कोई 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने थीम्स को पकड़ा हुआ है न्यूज़पेपर में जो साल भर ट्रेंडिंग चल रही है, कहीं ना कहीं उससे रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा. अगर पेपर में हल्का सा भी अनकन्वेंशनल सोर्स आता है तो ऐसा लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है, बट देन अगर आप क्वेश्चंस को देखें, अगर आप टॉपिक्स को देखें, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि आपको यू हैव टू कीप योर काम, यू हैव टू कीप योर कंपोजर. ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए, कोई बात नहीं, समय ज़्यादा लगेगा ना. यूजुअली हमें 5 मिनट देना रहता है, कोई बात नहीं, हम 7 मिनट दे देंगे, हम एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, हम 2 बार पैसेज को पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको ये मान के चलेंगे कि यार है क्या, आफ्टर ऑल इट्स नथिंग बट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. अगर पैसेज में अंग्रेजी समझ में आ रही है ना, और थीम के बारे में आइडिया है, तो आप आसानी से ये कर लोगे. सो देयर इज नो फंडामेंटल डिफरेंस एज सच इन द अप्रोचेस फॉर, यू कैन से approaches. I'm not saying in the examination, okay, I'm saying approaches in preparation. When you are using newspaper, there is no fundamental difference to work for RC और CR. भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पे काम ज़्यादा करना रहता है. ठीक है, रूल्स ऑफ ग्रामर में भी उतने नहीं ज़रूरी हैं जितने आपकी वॉकेबुलरी ज़रूरी है. बिकॉज वर्णमाला अगर कमज़ोर है ना, तो भाषा ही नहीं समझ में आएगी, और भाषा नहीं समझ में आएगी तो भाव नहीं समझ में आएगा, भाव नहीं समझ में आएगा तो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग वाले क्वेश्चंस आप गलत करोगे, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस आप गलत करोगे, एजम्पशन वाले क्वेश्चंस गलत करोगे, थीम वाले क्वेश्चन गलत करोगे. तो कहते हैं ना कि संदर्भ प्रसंग भावार्थ जो हम हिंदी में पढ़ते थे और इंग्लिश में पोएम से पढ़ते थे, उसकी वाइटैलिटी अपने को क्लैट पेपर में देखने को मिलती है. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर द ऑथर इज हिटिंग एंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग, राइट. सो देन अगेन आई एम सेइंग, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है. अपने को ना थोड़ा सा ज़्यादा समय बिता देना है पैसेज पे, और एटलीस्ट कोशिश करनी है
कि if not 5 then at least after spending 7 to 8 minutes in a passage I am able to mark at least 4 questions. So this was the quick analysis from CLAT 2023 for all of you. If you have any comment, any question, please drop a comment. We actively take up students' queries and we actively pursue students' comments, and your opinions are very well revered and respected. So do write us in the comment अगर आपको कोई guidance चाहिए, कोई tip चाहिए तो. This was Harshvardhan Tripathi signing off from this video. I'll see you guys in the next.